Okay, let's talk about lab session 5, basically buffer overflow. 3 files हमें इसके लिए required है, call_shellcode.c, which we can see here, stack.c. Basically I'm not going to go deep into this code. Basically we all know what buffer overflow is, and here we are simply writing in a bad file. And here we have an exploit.c file, which is basically using the shell code. And अच्छा ये जो चीज़ है ये हमें खुद फिल करनी है. Basically right now I have just I shall just erase it, बल्कि रहने देता हूँ. ये मैंने बेसिकली कंटेंट्स मतलब नेट से ही मैंने फ़ाइल उठाई है और उसी में ऐसे ही थे. सो आई विल शो यू कि बेसिकली ये 36, 37, 38, 39 ही यहाँ पे क्यों यूज़ हुए हैं एंड यहाँ पे कौन से कंटेंट्स आने चाहिए. मैं सब कुछ आपको एक एक करके दिखाऊंगा. बेसिकली अगर आप मैनुअल में देखेंगे तो ये पूरा कोड आपको मिल जाएगा exploit.c का, लेकिन ये चीज़ आपको खुद फिल करनी है. तो मैं अलॉन्ग द वे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि मैंने एक्जैक्टली ये क्यों लिए और ये चीज़ें क्या हैं. मतलब आई विल एक्सप्लेन दिस. सो जस्ट वेट. अच्छा, टास्क 1 में हमें क्या करना है. बेसिकली वी हैव टू एग्जीक्यूट द शेल कोड इन रूट फॉर्म. अच्छा, हमें पता है डॉलर साइन जो होता है बेसिकली शो कर रहा होता है कि अभी हम रूट मोड में नहीं है. वी आर यूजिंग ए नॉर्मल, बेसिकली हम यूज़र मोड में, नॉट इन अ रूट मोड. रूट मोड को बेसिकली डिनोट किया जाता है हैश से. सो बेसिकली वी विल एग्जीक्यूट द शेल कोड एंड वी विल जनरेट ए रूट. सो बेसिकली हमें वही मतलब टास्क 1 में करना है. सो वी विल स्टार्ट विद compiling the shell code and we will execute it and let's see what it shows. -z execute stack -o call shell stack. ऑब्जेक्ट फाइल मतलब आउटपुट फाइल का नेम वही रख देते हैं जो कि हमारे पास सी फाइल का नेम है, shell code. Sorry, here I have written shell stack. So now let's execute it. Call _ shell code. Oh, I forgot this .c here. Now it's compiled and I have successfully executed the shell code. But मसला ये है ये root form में नहीं है. So I don't need this. So I will exit it. I will go inside the root. Clear. I will go to the directory. Home. Seed. Downloads. Lab 5. Clear. Now what I have to do, first of all, task 1 में हमें एड्रेस रैंडमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है. टास्क 2 में हमें एड्रेस रैंडमाइजेशन को यूज़ करना है. सो बेसिकली फॉर टास्क 1 वी विल टर्न इट ऑफ जस्ट इन केस. अगर नहीं हो तो जस्ट इन केस हम ये कमांड चला देंगे ताकि अगर टर्न ऑन हो तो टर्न ऑफ हो जाएगी और अगर टर्न ऑफ है तो ऑब्वियसली टर्न ऑफ ही रहेगी. बट स्टिल इट्स बेटर टू रन इट. कर्नल डॉट रैंडमाइज _va _space equal to 0. So we have turned off the address randomization. Now we will compile the stack program. I already have this one. Successfully I have compiled the stack file. Now I will provide it rights because मुझे execute करना है root mode में. मैं root mode में हूँ तो मुझे इसको rights provide करने पड़ेंगे. So I will use chmod 4755 and I will give it to the stack.exe file. Next thing I want to do is I want to compile the exploit.c file. Exploit .c. Everything is okay. Done it. So now what I'm going to do, I am going to execute the exploit file and I'm going to use the stack file. And I have got the segmentation fault. Let's see why. Because I have already used the pre-downloaded files. I haven't changed the address location. So let's talk about this. अब इसको मैं आपको explain करता हूँ. So first of all, for that, the best tool is GDB. So we will initiate the GDB in quiet mode and we will open stack.exe file
because we want to see the information of the stack, because we want to find the addresses like return address, like etc etc, and because we want to get inside this function, so that's why stack. So let's disassemble the BOF function from the stack file. This is the BOF disassembled output. I will apply a breakpoint around about where we are loading the effective address along with EBP, the above command, just above it. I will copy this 0x paste. Yeah, the breakpoint is fine. I will run it, and now I will note the value of EBP, and it's this. अब ऑब्वियसली अच्छा एक और चीज़ मैं आपको डिफाइन कर दूँ. अब नीचे देखें, जो ये -0x20 जो है लोड इफेक्टिव एड्रेस कर रहा है EBP, तो ये बेसिकली -0x20 डेसिमल में होता है -32. तो बेसिकली इसका मतलब है कि मतलब 32 बाइट्स पीछे, मतलब 32 बाइट्स के बाद हमारे पास बेस पॉइंटर एड्रेस आ जाएगा. सो इसका मतलब 32 के बाद मेरे पास क्या आएगा, बेस पॉइंटर एड्रेस, और बेस पॉइंटर एड्रेस की 4 बाइट्स के बाद हमारे पास आता है रिटर्न पॉइंटर एड्रेस. तो हमें बेसिकली जाहिर सी बात है रिटर्न पॉइंटर एड्रेस को रीडायरेक्ट करना है कहीं इन मिडल ऑफ शेल कोड. ज़रूरी नहीं हम बिगनिंग ऑफ द शेल कोड में रीडायरेक्ट कर दें, हम कहीं भी इन द मिडल रीडायरेक्ट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा. सो इससे मैंने फिगर आउट कर दिया कि -32 यानी 32 बाइट्स बाद मेरे पास EBP आएगा, और EBP के 4 बाइट्स के बाद हमारे पास रिटर्न पॉइंटर एड्रेस आता है. तो इसीलिए exploit.c में मैंने ये 4 बाइट्स चेंज करनी है, 36, 37, 38, 39, और मुझे चेंज करना है एड्रेस से. तो अब मेरे पास एक बेस पॉइंटर एड्रेस आ गया अराउंड अबाउट 448. तो मैं एक अपनी तरफ से गेस लगा सकता हूँ कि मतलब मैं एक गेस लगाऊंगा कि अराउंड अबाउट कि मैं शेल कोड के बिटवीन पहुँच जाऊँ. तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, आखिरी के जो 3 डिजिट्स हैं मेरे पास इस एड्रेस के 448, लेट्स से आई एम चेंजिंग इट विद द एडिशन ऑफ 1 यानी 559. सो मैं बेसिकली करूँगा BF FF F559. So what I am going to do is I am going to change it F559. So around about I think, क्योंकि मैं बफर ओवरफ्लो अच्छा खासा रन कर चुका हूँ, डिसअसेंबलिंग कर चुका हूँ, तो मैं एक गैस लगा सकता हूँ कि इस एड्रेस पे, क्योंकि मैंने EBP देख लिया है एक ब्रेक पॉइंट लगा के, तो अराउंड अबाउट मेरा गैस है कि अगर मैं आखिरी की 3 बाइट लाइक अराउंड +1 कर दूँ और 448 की जगह मैं 559 में कहीं पहुँच जाऊँ, तो आई थिंक आई विल बी इन बिटवीन समवेयर इन द मिडल ऑफ शेल कोड. सो लेट मी सेव दिस फाइल. It has been saved. So now I am going to quit from the GDB file, and I am going to recompile the stack.c, and I am going to run the exploit.c, and I am going to run the stack.c. Okay, wait, I need to compile both files again, stack.c and the exploit.c. Where is it? And let's run the exploit.c, and let's run the stack, and I have successfully got the root symbol, and I can check the ID. I'm inside the root. So basically ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी अपनी एड्रेस स्पेस के मुताबिक, एंड जिस तरह मैंने गैस लगाया आप भी गैस लगाने की कोशिश करें. So you will eventually have this hash symbol, and you will successfully be done with the task 1. So this was all from exit. So this was all in task 1. Now बात करते हैं task 2 की. Okay, let's begin. अब टास्क में बेसिकली हमें क्या करना है, एड्रेस रैंडमाइजेशन यूज़ करनी है और फिर देखना है कि क्या होता है. सो लेट्स go back to the random address. Here we are, and let's give it a value of 2. So we have turned on the address randomization variable,
with 2. Now if we execute again this command and exploit command and we do this, and there you go. So address randomization जैसे मैंने enable किया, I was unable to get my root shell. So what can I do for that? Basically I can do that, I can use brute force technique here and I can run that as many times as I need, and once मतलब एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि eventually it will get to the root mode. Root shell, how about it running for many times? Exactly like आपके पास नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप क्यों ना एक लूप चला दें और ब्रूट फोर्स टेक्निक यूज़ करें. बिकॉज एड्रेस रैंडमाइजेशन आपकी इनेबल्ड है तो उसकी वजह से मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. सो राइट नाउ एग्जैक्टली मुझे तो खैर एड्रेस रैंडमाइजेशन का इतना अंदाज़ा नहीं है. आई एम जस्ट कंसर्न विद परफॉर्मिंग टास्क, बट देयर हैज़ टू बी अ रीज़न कि मतलब जैसे ही आप एड्रेस रैंडमाइजेशन इनेबल कर रहे हैं तो आपका ये नहीं रूट पे आया. सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स दी brute force technique. So he's saying run this command. Okay, let us run. No, I don't want this. Copy it, and what if I do this? No, I think all I have to do is I have to wait until it gives me a hash sign. इसकी खैर एक बेहतर एग्जांपल है मेरे पास. You can use this code as well. I was going through it. ये ज़्यादा फास्ट चलता है और जल्दी आपको आंसर दे देता है. बेसिकली एक defeat_ran.sh का स्क्रिप्ट है और ये भी आप चला सकते हैं इधर. एंड इवेंचुअली इट्स टेकिंग योर स्टैक फाइल. बट मैं अभी इस रेफरेंस को नहीं ले रहा, बिल्कुल अलग चीज़ है. मैं एक रीड कर रहा था, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैनुअल की कमांड यूज़ कर दूँ. सो लेट्स वेट, लेट मी पॉज इट एंड आई एम वेटिंग फॉर इट. ओके, सो बेसिकली आई हैव फोर्सफुली स्टॉप्ड इट because I'm not going to wait further more. Eventually it takes about 1 to 5 1 या 1.5 hour. अल्टीमेटली ये ब्रूट फोर्स चलता रहता है. इवेंचुअली फिर ये रुक जाता है और हैश साइन आ जाता है, रूट एक्सेस मिल जाता है आपको. तो खैर मैंने तो अभी फोर्सफुली स्टॉप कर दिया. हो सकता है मैं रात को इसको लगा छोड़ दूँ, फिर सुबह तक इवेंचुअली आउटपुट मिल ही जाएगा मुझे. एनीवेज, तो ये टास्क 2 था. सो नाउ आई थिंक लेट्स हेड over to task 3. Okay, let's talk about task 3. अच्छा, हम लोग दोबारा स्टैक को कंपाइल करेंगे, लेकिन हम लोग स्टैक गार्ड के बगैर. स्टैक गार्ड बेसिकली वो नोटेशन थी जो FNO-stack प्रोटेक्टर थी. इसको हम हटा के अब कंपाइल कर रहे हैं और फिर मैं समझाऊँगा. लाइक मैं एक ओवरव्यू दे दूँगा लाइक ये चीज़ करती क्या एग्जैक्टली. recompile the and as you can see, अब जब मैंने स्टैक रन किया तो बेसिकली इसने स्टैक स्मैशिंग डिटेक्ट कर दी और मतलब डिटेक्ट की और इसने कह दिया स्टैक टर्मिनेटेड. सो बेसिकली जब स्टैक गार्ड के साथ हम लोग चला रहे होते हैं तो बेसिकली वो एक रिटर्न एड्रेस से पहले एक रैंडम इंटीजर भी जनरेट कर देता है. मतलब इट सेल्फ वो जनरेट कर देता है. अब बेसिकली अब हम लोग क्या करें, उस स्टैक गार्ड के बगैर जब हम लोग कंपाइल करें और इम्प्लीमेंट करें तो बेसिकली इधर हो क्या आ रहा है, मतलब वो रैंडम इंटीजर भी जो है वो भी हम लोग ओवरराइट करें. वी एंड अप ओवरराइटिंग द रिटर्न एड्रेस एज वेल एज द रैंडम इंटीजर एज वेल. तो उससे ये हो रहा है कि वो स्टैक स्मैशिंग डिटेक्ट करे और टर्मिनेट करे. मतलब हो सकता है वो ये समझ रहा है कंपाइलर या बैक एंड पे, मतलब वो ये समझ रहा है कि रिटर्न इंटीजर भी ओवरराइड हो रहा है, रिटर्न एड्रेस भी ओवरराइड हो रहा है. तो हो सकता है कोई अटैकर मलिशियस एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है.
तो इसलिए वो क्या करता है कि स्टैक स्मैशिंग डिटेक्ट हो जाती है और स्टैक टर्मिनेट कर देता है वो। तो बेसिकली स्टैक गार्ड का ये काम था। सो विदाउट इट वी कैन क्लियरली सी द स्मैश स्टैकिंग डिटेक्टेड। ओके, सो बात कर लेते हैं आखिरी टास्क की। Basically what we have done, we have recompiled the stack.c file but with the no executable stack. So when we try to run it, it shows a segmentation fault because ये बिल्कुल सिमिलरली बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने टास्क 1 में कोशिश की थी and it got executed because the thing is that एग्जीक्यूटेबल स्टैक क्या बताता है, मतलब जो भी स्टैक के ऊपर अपनी चीज़ है, बेसिकली हमने क्या किया था उसको शेल कोड में पहुंचाने की कोशिश की थी एंड यूजिंग द शेल कोड वी गॉट द रूट प्रॉम्प्ट। सो अब वो नहीं हो सकता बिकॉज हमने नो एग्जीक्यूटेबल स्टैक कर दिया, तो जो भी मतलब स्टैक के ऊपर है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो इसलिए वो हमें स्टिल सेगमेंटेशन फॉल्ट दिखा रहा है। सो दिस इज़ द फाइनल टास्क and this is the completion. This concludes lab session 5.